بہنے والے آنسو کا ایک قطرہ آگ کے کئی سمندر کو بجھا دیتا ہے۔ وہ کسی نے بہت پیاری بات کہی ہے، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے آنسو نہیں ہیں، آنسو ہوں گا تو لاٹ ہے، بہت آنسو ہیں، لیکن ہمارے آنسو غم دنیا میں بہتے ہیں۔ گھر میں ٹینشن ہو جائے تو رونا آتا ہے، بے روزگاری ہو تو رونا آتا ہے، دیگر دنیاوی پریشانی ہو تو رونا آتا ہے۔ خوف خدا میں اللہ ہمیں اپنے خوف سے رونا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 3۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جبریل نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1439 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کے چوتھے روزے کی آج نماز عصر کے بعد عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر معتکفین کی موجودگی میں مدنی مذاکرے کی ترکیب ہے۔ اب سوال کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں وہ یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بچے کارٹون کی تصویروں والے کپڑے پہنتے ہیں، کسی کے کپڑوں پر پھول اور الگ الگ ڈیزائن بنے ہوتے ہیں۔ بچوں کے بستوں پر بھی الگ الگ کارٹون اور تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہم آپ کے ہیں اور آپ ہی ہمیں بتائیں کہ ہمارے کپڑے، بستے یہ سب کیسے ہونے چاہیے؟ ماشاءاللہ، کپڑوں پر، بستوں پر گلدستوں کی تصویر ہو، ہوائی جہاز، ریل گاڑی، کار، بس، درخت، پھول، تو اس میں تو کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے۔ اب آج کل تو عام طور پر جانداروں کی تصویروں والے ہی بکتے ہیں بابا سوٹ۔ اس کی وجہ یہی ہوگی کہ لوگ خریدتے بھی یہی ہوں گے، جو لوگ خریدیں گے یہ بیچیں گے، سادہ خریدیں گے سادہ بیچیں گے، گاہک پھول والا ڈھونڈیں گے کہ ہم کو گلاب کے پھول والا چاہیے بابا سوٹ، تو یہ جب پوچھتے رہیں گے دکاندار کو تو بنوائے گا کیا یار، لوگ تو گلاب کا پھول والا بولتے ہیں تو یہ فوٹو نہیں چاہیے ہم کو، تو یہ پھول والا بیچیں گے۔ اصل وہ خود بیچنے والوں کا تو اپنا جو بھی مزاج ہو، عوام کا مزاج بھی
درست نہیں رہا اور یہ تصویروں کو برا نہیں سمجھتے. ہاں یہ جو جیسے اسکرین پر تصویر آ رہی ہے نا، یہ وہ ہے اپنے ڈیجیٹل فوٹو، شعاعی تصویر، تو اس کا حکم الگ ہے. جیسے آئینے میں بھی تو ہم دیکھتے ہی ہیں نا، تو وہ یہ بھی وہ تصویر تو نہیں ہے نا آئینے کی، تو اس طرح یہ اسکرین کی آتی ہے. تو یہ تصویر میں اور وہ جو کاغذ پر یا کپڑوں پر جو اس کی پرنٹ آؤٹ کی جاتی ہے، اس تصویر میں فرق ہوتا ہے. شرعی حکم اس کا، شرعی مسئلہ الگ الگ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو دانتوں میں کچھ ذرات باقی رہ جاتے ہیں، تو سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد 1-2 گھنٹے بعد یا 3-4 گھنٹے بعد جب وہ ذرات دانتوں سے نکل کے ہمارے حلق کے نیچے یعنی معدے تک پہنچ جاتے ہیں، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ معدے تک پہنچنا بھی شرط نہیں ہے، حلق سے نیچے اترنے کا تعلق ہے. تو اب جو سحری کے وقت کا ہے غذا کا ذرہ، تو وہ چنے کے برابر یا چنے سے زیادہ ہو، اور روزہ بھی یاد ہے جب اس کو نگلا یا وہ اترا حلق سے نیچے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر چنے سے کم ہے تو نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ ہے کہ شیطان مردود جب ہوا تو اس کی نسل کیسے بڑھی؟ کیا شیطان نے شادی بھی کی تھی؟ شیطان کے لیے مختلف اقوال ہیں، جن میں یہ بھی ہے کہ وہ مرد بھی خود ہے، عورت بھی خود ہی ہے. خود ہی ایک ران میں مرد ہے، ایک ران میں عورت ہے، یہ خود ہی ترکیب بناتا ہے اور بچے بھی جنتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 2 کالز ہم چلا رہے ہیں. میرا قد بڑا نہیں ہو رہا ہے، باپا جان سے کوئی وظیفہ طلب کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سہیل رضا اطوری ہے. میرا راول پنڈی میروی کا میاں سے عرض کر رہا ہوں، اور میں مدنی منو کی والدین کو یہ ایک مدنی پھول عطا فرماتا ہوں کہ اپنے مدنی منو کو کارٹون نہیں دکھانی چاہیے، گیمیں نہیں کھلانی چاہیے، اور موبائل پہ گیمیں نہیں کھلانی چاہیے. ہمارے باپا جانی ہمیں علم دین سکھاتے ہیں، ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں، مدنی پھول دیتے ہیں. وہ صرف اور صرف مدنی چینل ہمیں دیکھنی چاہیے، اور مدنی منو کو بھی مدنی چینل، مدنی منو کو بھی مدنی چینل دکھانا چاہیے. فیضان مدنی مذاکرات جاری رہے. ماشاء اللہ، تو بڑی مدنی منی زوردار مبلغہ ہے. جو مدنی منا تھا، ماشاء اللہ، واہ، بڑا پیارا مبلغ ہے. یہ تو کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد شہباز اطاری ڈیرہ غازی خان سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اذان میں حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ کے جواب میں لاحول شریف پڑھنے کا کہا جاتا ہے، اور دیگر مواقع پر بھی لاحول شریف جیسے وظیفہ لکھا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لاحول شریف پورا پڑھا جائے گا یا صرف اتنا پڑھا جائے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس بارے میں رہنمائی فرما دو. اذان میں جو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو ان کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی پڑھنے کا ہے،
और एक हदीस में माशा अल्लाह कान व मा लम यशा लम यकुन, ये भी है। तो बहारी शरीफ में लिखा है दोनों ही पढ़ ले ताकि दोनों हदीसों पर अमल हो जाए। तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह भी पढ़ा तब भी ठीक है। तो जहाँ भी ला हौल शरीफ पढ़ने का होता है ना, तो वहाँ ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया तो ये पूरा है, अधूरा नहीं है। अच्छा, अब आगे अल अलील अज़ीम, ये अल्लाह ताला की मज़ीद सिफ़ात का यहाँ जिक्र है। अब हदीसों में जहाँ ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ने का तज़किरा हो तो वहाँ तो ये पूरा ही पढ़ना होगा। और जहाँ मुतलक़न ये कि ला हौल पढ़ा जाए, हदीस पाक के अलावा ला हौल पढ़ो भी, तो इल्ला बिल्लाह तक पढ़ा तो भी ये पूरा है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। और अवामुन नास जो है ना, वो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह तक तो अभी पढ़ लेते हैं किसी हद तक। अलील अज़ीम जब ये मिलाने जाते हैं ना तो फिर चौकड़ी भूल जाते हैं, क्या का क्या पढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए आवाम को तो इसी में शायद आसानी है कि वो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह तक पढ़े। अगर सही पढ़ना आता, अब सही पढ़ना आता ये बताए कौन, हिम्मत कौन करे? क्योंकि पढ़ने वाला तो ये समझता होगा ना मुझे सही आता है, हालांकि एक तादाद है जिसको बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं आती होती, अऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ना आता होता। सही बात है कि कलमा नहीं पढ़ना आता होता। सही कलमा ने क्या, मुसलमान तो हैं, ईमान तो है, कि कलमे के सही मखारिज जो है ना हरूफ वो अदा करना नहीं आते होते। तो ये सब सीखने से आएगा। अपने मदरसतुल मदीना बालिगान दावत इस्लामी के हज़ारों मदरसे हैं, बग़ैर किसी फीस के मुफ्त फी सबीलिल्लाह पढ़ाया जाता है। आम तौर पे ये इशा के बाद होते हैं, तो 40 मिनट के आसपास वो टाइम होता है। तो ये टाइम निकालें और आप पढ़ें। या एतिकाफ में भी अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ में दिन के वक्त मदरसतुल मदीना बालिगान का भी जदवल है। मोतकिफ इनको वक्त भी शायद पता होगा, इसका मैं भूल गया उस वक्त, बाकायदा इसका वक्त है। उस वक्त में ये कुरान करीम दुरुस्त करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो जो नहीं पढ़ते मेहरबानी करके वो भी पढ़ लें। जो पढ़ाना जानते हैं, सही पढ़ाना जानते हैं, वो जिम्मेदारों से मिल लें। अगर वो कोई टेस्ट की तरकीब कर लेते हैं आपकी कि वाकई आप पढ़ा सकते हैं, तो आप भी पढ़ाएं। तो यूँ सब मिलकर कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने वाले बनेंगे। तो इत्तिकाफ में तो यही तो इबादतें करनी है ना हमको। और कुरान सीखना ये भी कोई मामूली इबादत तो नहीं है, तो बहुत बड़ी इबादत है कि चलो अभी एहसास हुआ तो कुरान दुरुस्त करने के लिए बंदा कोशिश में लग गया। माह रमज़ान में कुरान करीम की तिलावत करने वालों की तादाद में ठीक ठाक इजाफा हो जाता है। घरों में भी मर्द और औरत ठीक ठाक कुरान करीम की तिलावत करने की कोशिश करते हैं, और मसाजिद में भी हमने देखा है कि मर्द हज़रात कुरान करीम की तिलावत करते हैं। ये कुछ मसला दिखाना पहले हो जाए फिर मैं अर्ज़ करता हूँ। पहले ये मसला सुन लेते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करता हूँ। वो चने के बराबर वाला जो मसला मैंने बयान किया वो तो दुरुस्त था, लेकिन इसकी तशरीह मकतबतुल मदीना जो बाहर शरीयत छापी है उसकी तशरीह पेश। अच्छा 12 मिनहु, अच्छा पहले से ही तशरीह मौजूद है। अच्छा अच्छा जी, अच्छा मैंने जो चने वाला बयान किया वो भी दुरुस्त तो है, अब मगर तशरीह अलग हाशिए में। जी जी, तो वो तशरीह भी सुन लीजिए। बाहर शरीयत जिल्द पहली वॉल्यूम फर्स्ट पेज नंबर 936। चने वाला मसला कहाँ लिखा हुआ है?
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی صلی الحبیب اللہ تعالی علی محمد مدرسۃ دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گیا، یا کم ہی تھی کہ تحت لکھا ہے حاشیے میں، مگر فتح القدیر، یہ فقہ کی مشہور کتاب ہے جو علماء جانتے ہیں، مگر فتح القدیر میں فرمایا کہ اگر اتنی ہو کہ بغیر تھوک کے مدد کے حلق سے نیچے اتر سکتی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اتنی خفیف یعنی معمولی ہو کہ لعاب یعنی تھوک کے ساتھ اتر سکتی ہے ورنہ نہیں، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جزاک اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر علیہ ابھی السلام مدنی مذاکرے میں اوبی وین کے ذریعے پاک بھٹائی کابینہ ٹنڈو آدم ضلع سانگڑ، پاک غزالی کابینہ سلان والی ضلع سرگودا گلزار طیبہ بھی ہمارے ساتھ شریک اس وقت ہمارے پاس تو نہیں آ رہے، ہو ہونے سکتا تھے۔ ہے کہ جمع ہو۔ ہمارے پاس سردار آباد تو ہے، سلہ والی ضلع سرگودا گلزار طیبہ اور ٹنڈو آدم جو ہیں اس کی اطلاع ہے، لیکن ہمیں ہمارے پاس یہاں پر اس وقت آ نہیں رہے، ہو سکتا ہے جمع ہو۔ ہم آڈیو سوال صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ ابھی میں امیر سنت سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں ماہ رمضان میں دنیا بھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، اور مساجد میں بھی ایک تعداد جوان اور بوڑھوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ صف در صف قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے بھی کچھ دیر پہلے مسئلہ بیان فرمایا کہ یہ درست پڑھنا، اب اول یہ کہ وہ کیسے پتہ چلے کہ میرا قرآن کریم پڑھنا درست نہیں ہے؟ یعنی میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو بھی حاضرین و ناظرین اگر انہیں کوئی دو چار ایسی آپ مثالیں بیان فرماتے کہ دیکھیں ہم یہ غلطیاں نارملی کر جاتے ہیں، تو اب آپ یہ بتائیں کہ یہ غلطی جو ہماری تلاوت میں پائی جائے اس غلطی کو درست کرنا زیادہ ثواب ہے یا اس غلطی کو باقی رکھتے ہوئے ہم قرآن کریم کی تلاوت ہی جاری رکھیں اس میں زیادہ ثواب ہے؟ ہونا کیا چاہیے؟ کیونکہ عموماً غلطی اتنی جلدی مانتے ہی نہیں ہے، میں کیا غلط پڑھتا ہوں؟ باقاعدہ میں نے کسی کو قرآن کریم یوں پڑھتے دیکھا ہے، یہ قرآن کریم پر انگلی ہے، یہ انگلی یوں چل رہی ہے، اس کے ہونٹ بھی نہیں ہل رہے، اس کی انگلی یوں چل رہی ہے، تو اب سمجھتا ہوگا کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں۔ تو کچھ اگر اس معاملے میں حاضرین اور ناظرین کی اگر آپ کی طرف سے رہنمائی ہو جائے اور یہ جذبہ نصیب ہو جائے کہ ہم نے قرآن کریم درست کرنا ہے، تو میں حاضرین و ناظرین سے عرض کروں گا کہ توجہ کے ساتھ ان مدنی پھولوں کو سنیے اور اپنے وجود میں اور خود اپنے آپ کو دیکھیے کہ میں کہاں غلط ہوں، میں کہاں صحیح ہوں۔ واقعی غلطیاں تو آج کل بہت ہوتی ہیں، وہ اور حرف بدلنے سے معنی عام طور پہ بدل جاتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو چند مثالیں دوں، جیسے کہ الحمدللہ، تو اس میں ہے حمد، ہاں حلق سے نکلے گا، تو حمد کے معنی ہے خوبی۔ اچھا، اب یہ کہ میمن برادری، گجراتی برادری خاص کر حمد کی جگہ حمد پڑھتے ہیں، تو حمد اگر پڑھیں گے نا تو معنی بالکل بدل جائیں گے۔ حمد کے معنی خوبی، تعریف، اور حمد کے معنی دھیمی آگ، سلو فائر۔ قل هو اللہ احد، احد کے معنی اکیلا، تنہا، اکیلا، انگلش alone، احد مانے alone، اکیلا، اور اس کو پڑھتے ہیں احد، احد حلق سے نہیں نکالتے، احد پڑھیں گے تو معنی بنیں گے بزدل، کمزور۔
सिंगल, हाँ सिंगल, हाँ गॉड इज वन, अल्लाह इज वन, गॉड ना बोलना चाहिए, मुनासिब नहीं है, अल्लाह इज वन। तो अब माज़ल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद की जगह अहद पढ़ा तो ये जुमला तो है कुफरिया, लेकिन ज़ाहिर नियत नहीं होती, माना भी नहीं पता होते, तो यूं जहालत की वजह से बचत हो जाती है। अगर माना समझते हुए कोई ये आयत इस तरह पढ़ेगा तो काफिर हो जाएगा। तो अहद माने अकेला, वन, अहद माने बुज़दिल, कमजोर, तो अल्लाह अकेला है, वन है। नाउज़ुबिल्लाह, बुज़दिल और कमजोर के माना में तो हम एक दूसरे को भी कहेंगे तो दिल आजारी होगी, तो बुज़दिल है कोई किसी को कहेगा तो लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई नहीं कर सकता तो नाराज बहुत हो जाएगा। तो अल्लाह की शान में ये लफ्ज, तो ये क्या ना जानने की वजह से, ना सीखने की वजह से, बगैर नीयत के ये लोग बोल रहे होते, इस तरह के तो बेशुमार अल्फाज ये बोल रहे होते। मुझे बहुत पुरानी बात याद आई, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में हाजिर था। मैं कोई सा मसला निकला कि कुरान करीम लोग दुरुस्त नहीं पढ़ते, तो मैंने कहा वो कुरान भी इन पर लानत करता है, वो इस तरह, मैंने कहा रिवायत है ना, तो इन्होंने फरमाया कि ये हदीस है ना, कुरान लानत करता है, ये तो छोटी छोटी गलतियों पर है, यहाँ तो ये कुरान पढ़ रहे होते कुफरियात बक रहे होते। तो ये कुफ्र की एक मिसाल दी मैंने। अच्छा, और दूसरा वो हमद के माने हमद, धीमी आग, तो ये भी माना तो बिल्कुल तितर बितर हो गए, बदल गए। नमाज में अगर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगा नमाज तो गई, माना बदल गए ना, फासिद हो गए, ने गलत माना हुआ है। इस तरह कुल हुवल्लाहु अहद की जगह नमाज में ये सूरत इखलास पढ़ी और अहद पढ़ा तो नमाज तो नहीं होगी। अब बोलो मैं नहीं जानता तो भी नमाज नहीं होगी। नमाज उसकी होगी कि जो इसको सीखने की कोशिश रात दिन कर रहा है। अब जमाना है कोशिश में, उस दौर जो कोशिश का जो पीरियड है ना, उस पीरियड में उसकी अपनी नमाज दुरुस्त है। तो इतना मामला नाजुक है। आप अफजल की बात कर रहे हैं कि कुरान पढ़ना अफजल है या सीखना अफजल है? सीखना फर्ज है। अफजल तो जो ना भी करे तो कोई गुनाह नहीं होता इसमें, यानी इतना सीखना तो फर्ज है कि जिससे नमाज दुरुस्त हो सके। और अगर तिलावत करना चाहता है तो वो तिलावत भी उसको सीखनी पड़ेगी, बगैर सीखे तो वही कुफरियात बके जा रहा है, ऐसे से माना वो बोलते जा रहा है। लेकिन मैंने ये काफिर नहीं कहा, इसलिए कि वो जहालत की वजह से कह रहा है, इसको माना ही नहीं पता। और भी मैं मिसालें दूं, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल ये दो नुक्ते वाला काफ है, कुल। तो अगर नाजिरात यानी मदनी बेटियां सुन रही हैं तो खाना पकाते हुए सुनेंगी तो शायद गलतफहमी हो जाएगी, और ये ज्यादा गलतियां कर रही होती हैं। तो ये भी गौर से सुने, थोड़ा हाथ रोक के, आपको इंशाअल्लाह आखिरत का बड़ा नफा बख्श मैं मतलब है कि खजाना पेश कर रहा हूं। कुल, कुल माने कह दे, टॉक, टॉक से कुल माने से कहो। और अगर इसको कुल पढ़ा, मेमनों में ये ज्यादा मरज है, कुल को कुल पढ़ेंगे तो कुल का, कुल के माना है खाओ, कुल माने से कहो, कुल यानी खाओ, ईट, ईट, कुल यानी ईट, खाओ। अब कितना फर्क पड़ गया माना में। अब कुल हुवल्लाहु अहद की जगह कुल पढ़ा तो फिर जो कहाँ के कहाँ निकल गए। वो कुल जो आप कह रहे हैं जिसका मतलब कहो, वो दो नुक्ते वाला कुल काफ, और जो आप कुल कह रहे हैं इसका वो डंडी वाला जिसे हम किताब लिखते हैं, ये तो ये अच्छा, शक्ल भी दोनों की चूंकि तब्दील है तो बोलने का अंदाज भी तब्दील होना चाहिए, तो दोनों के माना भी बदलेंगे, यही कहा जाएगा जी। अच्छा, इस तरह कालू, दो नुक्ते वाला काफ, कालू के माना है उन्होंने कहा, क्यालू
निरंडी वाले काफ से, कालू उन्होंने नापा, पैमाइश करते हैं, नापते हैं। मेजरमेंट, नापना, पैमाइश। अच्छा, अलीम, अल्लाह तबारक व तआला का एक सिफाती नाम है अलीम। अलीम यानी जानने वाला। ये कुरानी अल्फाज बता रहा हूँ, कुरान करीम में ये जगह जगह ये अल्फाज हैं। अलीम, अलीमुम बिज़ाति सुदूर, सीनों का हाल जानने वाला। तो अलीम यानी जानने वाला। अच्छा, इसको अलिफ से पढ़ा, अगर ये आइन से था अलीम, अलिफ से पढ़ा अलीम, तो इसका मतलब है दर्दनाक, अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब। अच्छा, अलम, आइन से अलम झंडा, अलिफ लाम मीम से अलम यानी गम। वन हर, और कुर्बानी कर, वन हर में हा, हलवे वाली हा इसको बोलते हैं, ये सूरह कौसर में ना। तो वन हर यानी कुर्बानी कर। अगर इसको वन हर, मदीना के आखिर में जो हा आती है ये पढ़ी वन हर, तो इसके माना होंगे और झिड़क। नस्र, स्वाद, इज़ा जा नस्रुल्लाह, स्वाद का नस्र, इसके माना फतहा, विक्ट्री। और सीन से पढ़ा नस्र तो बन गया माना गिद्ध, ये एक शिकारी परिंदा है जो उड़ता है। अमल, आइन से अमल यानी काम, वर्क। अलिफ से अमल यानी उम्मीद, होप। ज़ाहिर, ज़्वा से, ज़ाहिर माने वाज़ेह, क्लियर। और ज़ाहिर, ज़ा, रे के बाद जो रा के बाद ज़ा, ज़ाहिर यानी रोशन। हामी यानी हिमायती, हामी वो छोटी हा वाला, हामी यानी हाँ करना। शोहदा, सैयदुश्शोहदा, शहीदों का सरदार। शोहदा यानी शहीद की जमा, शोहदा। हा को अगर साकिन पढ़ा तो इसका मतलब लुच्चा, बदमाश। ये हिंदी लफ्ज है शोहदा। तो हमारे मेरे को मिसाल देने में भी डर लग रहा है। सैयदुश्शोहदा को यहाँ को साकिन पढ़ने का रवाज है, तो कोशिश की जाए कि जो अरबी लफ्ज है वो पढ़ा जाए, क्योंकि ये सैयदुश्शोहदा ये पूरी तरकीब ही अरबी है। अजान, अजान दी जाती है। अजान माने खबरदार करना। आजान, हमारे आजान बोलते हैं, काफी नहीं भाई। आजान ये उज़न की जमा यानी कान। इसे और भी समद, स्वाद से अल्लाहु समद, समद माने बेनियाज, बेपरवाह। और सीन से पढ़ेंगे समद यानी हैरान और परेशान। तो अल्लाहु समद की जगह अगर सीन पढ़ेंगे जानबूझकर माना समझते हुए तो वही काफिर हो जाएगा। लेकिन चूंकि माना पता नहीं होता, बेख्याली में पढ़ रहा है, तो यहाँ जालत की वजह से यहाँ कुफ्र का हुक्म नहीं दिया जाएगा। जुमला तो कुफ्रिया ही बनेगा, लेकिन जो बोल रहा है इसको काफिर नहीं कहा जाएगा। अच्छा, अब अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज ये है कि तजर्बा ये है कि ये सारी तफसील सुनने के बाद भी और ये बात का यकीन हो जाने के बाद भी कि मेरे तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं है, मेरी अदायगी दुरुस्त नहीं है और मैं जो पढ़ रहा हूँ उसके मायना बदल रहे होते हैं, मान लेता है, मगर फिर भी अपने कुरान करीम के पढ़ने को दुरुस्त नहीं करता। ना इस्लामी बहनें इस पर प्रॉपर कोशिश करती हैं, ना इस्लामी भाई करते हैं, बिलखुसूस जो थोड़े बड़ी उम्र के हो जाते हैं। फिर थोड़े वो खाते पीते टाइप के लोग होते हैं, सरमाएदार किस्म के लोग होते हैं, और इस तरह के भी जो लोग होते हैं वो इस चीज़ को इतना मतलब अहमियत ही नहीं देते, माज़अल्लाह इग्नोर कर जाते हैं। ठीक है यार, चलो। फिर साथ एक जुमला आता है, अल्लाह कबूल फरमाएगा।
ने अल्लाह को गालियां दे और वो कबूल करेगा, माज़अल्लाह ने गालियां बन जाती है। मैंने आपको मिसालें दी, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इसमें तो इससे पहले मर जाना चाहिए ईमान पर कि हम अल्लाह ताला के बारे में ऐसी बातें करें। अब पता चल गया फिर भी कहेंगे यार अल्लाह कबूल करेगा, तो गालियां दोगे वो कबूल करेगा क्या? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ऐसी बात तो सोचनी भी नहीं चाहिए, सीखना चाहिए। अब मालदार हो या नादार यानी गरीब हो, तो सीखना तो सबको पड़ेगा ना। अब बोलते हैं ये पढ़ा लिखा है, क्या है? डॉक्टरेट की डिग्री है, कुरान करीम देखकर पढ़ना आता है? नहीं आता, तो ये पढ़ा लिखा का है? जाहिल होगा सरदार है। तो कुरान जो पढ़ा हुआ है वही तो पढ़ा लिखा है, जो इल्म दीन जानता है वही तो पढ़ा लिखा हुआ है। उर्फ़े आम में उसी को पढ़ा लिखा बोलते हैं जो इंग्लिश अच्छी जानता हो और मतलब यानी कि यूँ थोड़ा अप टू डेट टाई और टाइट लिबास में हो, साहब बड़ा पढ़ा लिखा जेंटलमैन है। अब यार क्या पढ़ा लिखा है? मुसलमान है और कुरान करीम पढ़ना नहीं आता, आप बताइए यार ये पढ़ा लिखा है? नमाज के अरकान नहीं मालूम, क्या ये पढ़ा लिखा है? वुजू के फर्ज नहीं जानता, क्या ये पढ़ा लिखा है? होगा पढ़ा लिखा आपके नज़दीक, मेरे नज़दीक तो नहीं है। मेरे नज़दीक वो है कि जो कुरान से ही दुरुस्त पढ़ता है, फ़र्ज उलूम जानता है, वो पढ़ा लिखा है। ये आपको चोट करने के कह रहा हूँ। दुनियावी तौर पर वाकई उसको पढ़ा लिखा बोलते हैं, बोलने में हरज नहीं है, लेकिन चोट करने के लिए कि वाकई पढ़ा लिखा तो वो है ना कि जो मतलब जो मैंने अर्ज किया वो जानता हूँ, और कुरान देखकर भी ना पढ़ना जाने, अब वो पढ़ा लिखा तो ऐसे पढ़े लिखे को डालेगा हम। तो इसलिए वो सब पढ़े लिखे जो हैं वो बुरा नहीं माने। मैं आपकी आखिरत के लिए ये बात कर रहा हूँ। मरीज होता है उसको दवा देते कड़वी, तो डॉक्टर को गालियाँ नहीं देता, वो भी समझता है कि यार पैसे देकर कड़वी दवा लाया हूँ और मेरे फ़ायदे के लिए, तो मैं अगर ये कड़वी दवा लगती है तो मैं आपको यार मुफ्त दे रहा हूँ बगैर पैसों के। तो मुझे तो आपको गालियां अगर नहीं दे रहे और पैसे भी नहीं दे रहे, दुआएं देनी चाहिए। गालियां तो उसको भी नहीं देते ना डॉक्टर को, तो मुझे भी बुरा भला कहने के बजाय मुझे दुआएं दें। हाँ, मैंने अगर गलत बात की है तो अगर कोई आपके पास शरई तौर पर इसकी दलील है तो मुझे मुतमईन कर दें। अब मुझे क्या तकलीफ है कि मैं आपको ऐसी बातें करूं? अब बात पर बात निकली तो मैं अपने महबूब की उम्मत को समझा रहा हूं कि कुरान पढ़ो और दुरुस्त पढ़ो, सीखो। मैं कौन सा गलत कह रहा हूँ? आप जो कपड़े सिलाई करने के लिए ले लें और वो उल्टा सीधा केंचा चलाकर आप कुर्ते के बदले थैला बनाकर पकड़ा दें उसको, जो सीने के लिए दे गया, क्या ख्याल है आपका? थैले में आपको बंद करेगा अगर वो पावरफुल हो तो? अब मैंने कपड़ा ही तो सिया है, तो क्या कपड़ा सिया? थैला बना के रख दिया, हमारे कपड़े का कुंडा कर दिया। तो आप बोले मैं कुरान तो पढ़ रहा हूँ, अल्लाह कबूल करेगा। हम भी तो बोलते हैं ना कुरान पढ़ो तो अल्लाह कबूल करेगा। आप कुरान नहीं पढ़ रहे, आप बहुत कुछ बुरा भला कह रहे हैं, ये इस तरह का पढ़ रहे हैं, माना बिल्कुल तब्दील हो रहे हैं। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु कुरान वल कुरान यलअनु। बहुत से कुरान पढ़ने वाले हैं कि कुरान उनके ऊपर लानत कर रहा होता है। अब वो हदीस पाक है। अब इसको हम थोड़ा सा यूं क्लोज की तरफ लेके जाते हैं कि अब आप मेहरबानी करके कुरान करीम दुरुस्त सीखने और पढ़ने की कोशिश करें। दावत इस्लामी में मदरसतुल मदीना बालिगान और बालिगात दोनों लगाए जाते हैं। इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, आप दुनिया में कहीं भी हैं, आप हमारी वेबसाइट के ज़रिए, टेलीफोन नंबर आपको मदनी चैनल की स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं, इसके ज़रिए आप आगे तो बढ़ें। आपको घर में कोई शोपीस चाहिए होता है, आपको पता है फला मुल्क में मिलता है, शोपीस मंगवा लेते हैं। आपको बर्तन चाहिए होते हैं, फला मुल्क में मिलता है, बर्तन मंगवा लेते हैं। आपको जो चीज़ समझ में आती है आप दुनिया से मंगवा लेते हैं। आपको अगर ये जहन बन जाए कि मैंने अपने कुरान करीम दुरुस्त करना है, तो आप कोशिश करें, आप आगे बढ़ें, आपको रास्ता मिलेगा। हमारी वेबसाइट का नंबर आपके पास है, हमारे वेबसाइट का एड्रेस, हमारे व्हाट्सएप का एड्रेस, हमारे दीगर कम्युनिकेशन के जो भी मामलात है वो सब हम स्क्रीन पर दिखा रहे होते हैं, अभी भी दिखा दें, ये अभी आपको दिखाना शुरू कर दिए। इसमें से आएँ, राब्ता करें और कोशिश करें। और ऑनलाइन हमारी सर्विस है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, नेट के ज़रिए अब आप घर बैठे कुरान करीम दुरुस्त कर सकते हैं। इस्लामी भाइयों को इस्लामी भाई पढ़ाते हैं, इस्लामी बहनों को इस्लामी बहनें पढ़ाती हैं। मेहरबानी करें और कुरान को दुरुस्त करें, इसमें बिल्कुल कोताही ना करें। अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरे मोतकिफीन
आशिकान रमज़ान आप में से भी एक तादाद होगी जो शायद कुरान पढ़ना सही नहीं जानती होगी। हाथ जोड़ता हूँ, सुबह या सुबह के टाइम में जो मदरसतुल मदीना बालेगान सवा 12 बजे के उठाना शुरू करते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं कुरान करीम। तो यार थोड़ा उठ जाया करो और नियत करें कि बस यहाँ से कुरान सीख कर हम निकले इंशाअल्लाह। 1 महीना आपको मिला हुआ है, इससे फायदा उठा लो। बाद में शायद मौका आप बोलेंगे नहीं मिलता हमको टाइम, वो भी टाइम नहीं मिलता, ये भी गलत उज़्र है, टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो आपको टाइम मिला हुआ है, इससे फायदा उठाया तो सही है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह और सब सीख लें कुरान करीम। मेरे रब का कलाम ही अगर हमें पढ़ना नहीं आता तो फिर हमको आता क्या है। माशाअल्लाह सरदाराबाद वालों ने भी हाथ उठाए, ये भी पढ़ेंगे कुरान करीम सीखेंगे। सरदाराबाद में भी बालेगान के मदरसतुल मदीना मौजूद, और एहतिकाफ में भी सिखाने की तरकीब। ज़ाहिर है कि वो अपना जदवल तो हर जगह ये इस तरह का जदवल होता है, जहाँ 1 माह का वो एहतिकाफ हो रहा है माह रमज़ान पूरे का, तो ये भी सीखेंगे इंशाअल्लाह। सारे मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाई, आशिकान रसूल, मेरी मदनी बेटियां, सब कुरान करीम सीख लें। मरने से पहले पहले सही कुरान आ जाए तो खुदा की कसम बहुत बड़ी नेमत हमने पाली, यूं समझ लो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सरकार बगदाद रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मैं अपने मुरीद बल्कि इनके मुरीदों का 7 पुश्त तक हर एक मामले का जिम्मेदार हूँ। अगर मेरे मुरीद का सत्र मशरिक में खुल जाए और मैं मगरिब में हूँ तो मैं उसको छुपाने वाला हूँ। मीठे मीठे इस्लामी भाई मदनी चैनल के नाज़रीन, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में बाद मुख्तलिफ ममालिक और कई मुख्तलिफ शहरों से आने वाले आशिकान रसूल टंडो आदम, ज़िला सांगड़, पाक भिटाई का बीना, सिल्ला वाली, ज़िला सरगोदा, गुलजार तैयबा, पाक गज़ाली का बीना, ओबी वैन के ज़रिए जो आशिकान रसूल मौजूद हैं और सरदाराबाद में जो इज्तिमाई तौर पर जमा हैं, आए हम अपने गुनाहों से तौबा करें और सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सिलसिले में शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए दाखिल हो जाए। अमीर अहले सुन्नत जो अल्फाज अदा फरमाएँ आप भी दोहराएँ, इसकी बरकत से आप सिलसिला आलिया, कादरिया, अत्तारिया में दाखिल होंगे। और वो नाज़रीन और हाज़रीन जो पहले ही किसी सिलसिले में दाखिल है, चाहें तो बैअत बरकत हासिल कर सकते हैं। अमीर अहले सुन्नत फरमाए, मुरीद होता हूँ मैं, तो आप कहिए तालिब होता हूँ मैं। आप अपने ही पीर साहिब के मुरीद रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इस सिलसिले का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। मैं अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ करता हूँ हमें तौबा भी करवा दे, सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सिलसिले में दाखिल भी फरमा ले। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा, बद मज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा। नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा। माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलौज, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ए अल्लाह
मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं खानदाने आली शान कादिरिया रज़विया मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। शान रमज़ान फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसने रमज़ानुल मुबारक के शुरू से आखिर तक बाजमाअत नमाज पढ़ी उसने लैलतुल क़द्र से अपना हिस्सा पा लिया। अल्लाह वालों की बातें जिल्द 5 सफ़ा 85 से ये मैंने हदीस आपको ये इसके हवाले से हदीस बयान की गई। भाई अगर चाहते हो नमाजें पढ़ूं मदनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ। बाजमाअत नमाजों का जज्बा मिले मदनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। हमारे रुकन शुरा हाजी फुज़ैल अत्तारी की तरफ से पैगाम आया है कि 12:45 यानी 12:45 बजे यहाँ आलमी मदी मक्का फैज़ान मदीना में मदरसतुल मदीना बालिगान की तरकीब होती है और माशाअल्लाह कह रहे हैं कि अच्छी तादाद भरपूर तादाद में इस्लामी भाई इसमें शिरकत करने की सादत हासिल कर रहे हैं। तो अब ये मैंने वक्त का ऐलान किया, अगर किसी के इल्म में नहीं है तो वो भी इससे फ़ायदा उठाएं और नाज़रीन को भी चाहिए कि फैज़ान मदीना का रुख करें। यहाँ पर माशाअल्लाह इल्म दीन सीखने के बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। और जो मदरसतुल मदीना बालिगान लगता है उसका दौरानिया 63 मिनट है जो इलाकों के अंदर लगता है, जिसमें फ़र्ज़ उलूम का भी कुछ निसाब मदरसतुल मदीना की मजलिस ने दाखिल किया है और 63 मिनट का उसका दौरानिया है और उसका एक निसाब भी है। उसके मुताबिक कोशिश होती है मजलिस की कि उसकी तरकीब की जाए। माशाअल्लाह मरहबा। मैंने कल अमीर रसूल से पूछना था कि अगर रोजे की हालत में हलक में पानी चला जाए तो उसको उसी वक्त बाहर निकाल दिया जाए तो उससे रोजा टूटेगा या नहीं टूटेगा? हलक से नीचे पानी उतर गया और रोजा भी याद था तब तो रोजा टूट चुका, अब निकालने से क्या होगा? वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं मोहम्मद शफीक बुआने से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद जाने से मेरा ये सवाल है कि क्या फजर की सुनते हैं घर में पढ़कर जाकर फर्ज जो है वो जाकर मस्जिद में पढ़े जा सकते हैं? बिल्कुल पढ़े जा सकते हैं, दुरुस्त है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बल्कि अच्छा हाँ, पहले तो ये था घर में पढ़ना अफजल लिखा है, लेकिन अब ये फरमा रहे हैं कि अब मस्जिद में पढ़े ताकि लोग बदगुमानी ना करें।
जैसे जुम्मे की नमाज 2 रकात पढ़कर जो निकल जाता ना, तो लोग यही समझते हैं कि ये सुन्नत नहीं पढ़ते, हालांकि ये बेचारे हो सकता है घर पे या दुकान में जाके पढ़ते हो। तो इसलिए वो लोगों को बदगुमानी से बचाना चाहिए। लेकिन पढ़ ली तो हो गई घर में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम सैयद गुलाम मुर्तज़ा है और मेरा मसला ये है कि मैंने तंदूर लगाया हुआ है रोटी का, ठीक है। अगर रोज़ा रखता हूँ तो वो फिर काम नहीं कर सकता, गर्मी बहुत होती है, आग से खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर रोज़ा रखता हूँ तो वो मसला ये बनता है कि काम नहीं कर सकता। बच्चों का मसला, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मुझे क्या करना चाहिए? उतनी देर काम करना चाहिए जितनी देर आप बर्दाश्त कर सकते हैं। कुछ न कुछ आगे पीछे रकम होती है जो मतलब गुजारा हो सकता है, क्योंकि यह अल्लाह का फर्ज है। अब इसमें आप बोलो मैं नानबाई हूँ, रोटी पकाता हूँ, कोई बोलेगा उस हमने समोसे के जो पुर बनाते हैं ना, पड़ समोसे के, ये भी मैंने देखे हैं, ये बनाते हैं और इनका ही काम यही आग का, तो ये भी रोज़ा नहीं रखते, नहीं रख पाते। मिठाई वालों को देखा है मैंने, दाढ़ियों वालों को देखा है, मजहबी नमाजियों को मैंने ये नोट किया है कि जब इनकी मिठाई की दुकान पर 27वीं आती है जैसे, और ये बिल्कुल ईद के लिए इनको भरपूर स्टॉक बनाना होता है, तो ये भी रोज़ा इनका भी मसला हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हिर्स है। आदमी सादा खा ले, कम खा ले, और रोज़ा बहरहाल नानवाई को मुआफ नहीं है, ये उज़्र नहीं है, बच्चे भूखे नहीं मर जाएंगे इंशाअल्लाह। इनको भी मिल जाएगा जो खुदा 11 महीने तक खिलाता रहा और रमज़ान में आपको भूखा नहीं छोड़ेगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे मुर्शिद करीम की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि नमाज पढ़ते वक्त जब नियत की जाती है तो अल्लाह अकबर कहते वक्त कानों को हाथ लगाए जाते हैं, तो जो कानों को अंगूठे के नाखून टच किए जाते हैं वो कान की लो के फ्रंट अगली साइड पर टच किए जाते हैं या पिछली साइड पर टच किए जाते हैं? जवाब याद फरमा दीजिए। ये कानों तक अगर उठा भी लिए ना, टच नहीं भी हुए ना, तब भी वो सुन्नत अदा हो जाएगी। टच हो गए तब भी सही है, और नाखून टच हो जाए या अंगूठे का हिस्सा आगे पीछे कहीं भी टच हो जाए, ना भी हो तब भी ऊपर तक, जैसे चादर है तब कहाँ टच होगा, कानों तक उठाने हैं हाथ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब्दुल कदूस खुशाब से अर्ज कर रहा हूँ, माशाल्लाह मदनी मुज़ाकरा अपनी बरकतें लुटा रहा है। मेरा बाबा जान से ये सवाल है कि जब तरावी पढ़ी जाती है तो इसमें क्योंकि हम कुछ लोग, बहुत लोग हैं, एक बड़ी तादाद है जिन्होंने नाज़रा कुरान पाक पढ़ा होता है, जिनको हिफ्ज़ नहीं होता, और इस वजह से तरावी लंबी होती है तो ज़हन दूसरी दुनियावी चीज़ों की तरफ चला जाता है। कोई ऐसा इलाज बता दीजिए कि ज़हन तरावी में ही रहे और तरावी से बरकतें हासिल कर सके। असल इसके बहुत सारी वजूहत है, ये बस नमाज में हमारा दिल नहीं लगता। जो लोग इंग्लिश नहीं जानते ना, वो भी इंग्लिश फिल्में देखते हैं, ये तो बचपन से सुना हुआ है मैंने। इंग्लिश फिल्मों में यूँ मज़ा आता, मार धाड़ होती है, यूँ बोलते थे, समझ नहीं आती। उनका दिल लगता है कि वो दिल इसका आदी है, मरीज है। यहाँ हमारा दिल जो है ना कुरान करीम से मानूस नहीं हो पा रहा, हम आदी नहीं है। सारा साल कुरान करीम ना खोलते हैं, ना पढ़ते हैं, ना दिल लगाते हैं, ना इसके फ़ज़ाइल पर तवज्जो देते हैं, ना दुरुस्त सीखते हैं। तो यूँ मतलब ये कि तरावी ही में क्या, नमाजों में कौन सा दिल लगता है। अब वो कि समझ नहीं आती इसलिए दिल नहीं लगता, ये नहीं है। ज़ोहर और असर की नमाज में कहाँ आवाज़ आती है, तो आहिस्ता पढ़ना होता है। तो
دل لگانے کے لیے زبردستی اپنے نفس کو مارے اور بندہ خود کو مائل کرے سننے پر، کہ سمجھ نہیں آتی جب بھی قرآن کریم سننا ثواب کا کام ہے، ثواب ملے گا، نہیں سمجھ آتی تب بھی پڑھے گا تو ثواب ملے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سیدی محمد ساجد اثاری کہرو پکا ضلع لودھرا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا اسلامی بہنیں اپنے نام کے ساتھ سگے اثار لکھوا سکتی ہیں یا لکھ سکتی ہیں؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں اور میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ میں اس طرح بھائیوں کو اجازت نہیں دیتا، اس طرح بہنوں کا چھیڑوں گا۔ اچھا بڑی مشکل یہ کہ معنی پتہ نہیں ہوتا، مشکل یہ تو یہ تعجب کر رہے ہو کہ اسلام بھائی وہ کیوں اجازت نہیں دیتا، تو یہ ہمارے بھیڑ چال ہوتی ہے، ایک کو دیکھا دیکھی ایک تعداد جن کو معنی تھوڑی پتہ ہوں گے۔ ایک چٹکلا گھر کا اپنے یاد آیا مجھے کہ کسی نے وہ گھر کے ہی جو جانتا ہوگا معنی، اس نے وہ یہی الفاظ کہے ہوں گے، تو ہمارے گھر کے فرد نے جو عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، وہ کہ میں بھی تو ہوں، تو میں نے کہا آپ بھی میرے سگے ہیں نا، تو بولا اور کیا سگے تو ہے نا، سگ کے معنی سگے رشتہ دار۔ تو خیر، تو اب یہ کہ میں اب اس پر کیا تبصرے کروں کہ اتنا کر دیا تبصرہ، اب آپ کچھ چاہیں تو بول سکتے ہیں، چاہیں تو۔ مجھے تو سوال چلانے پر حیرت ہو رہی ہے کہ آپ سے پوچھا کیوں گیا؟ شاید وہ دلچسپی کے لیے سوال آ گیا ہو تو چلا دیا ہوگا کہ وہ تھوڑی نیند اڑ جائے، تھکن دور ہو جائے، ہمت آ جائے، تھوڑی فریش ہو جاتا ہے آدمی اس طرح کی باتوں سے۔ سگ جو ہے نا، یہ وفاداری کے طور پر اور بہت سارے معنی میں، اچھے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ امیل سنت خود کو سگ مدینہ لکھتے ہیں، یہ عشق ہے مدینے سے، مدینے سے محبت ہے۔ آپ کو یہ لکھنے کی اجازت ہے سگ مدینہ؟ تو کس کو کیا لکھنے کی اب اجازت ہونی چاہیے؟ چلے سوال چلائیے۔ ہم کوئٹہ سے بات کر رہے ہیں، فتح محمد ہمارا نام ہے، ہماری بیوی نماز پڑھتی ہے نا، الٹے پاؤں پر بیٹھتی ہے، سیدھے پاؤں پر نہیں بیٹھ سکتی، نماز ہو جائے گی جناب؟ ہاں تو مجبوری بھی تو ہے بیچاری، حرج کے اس میں کوئی حرج نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام جی چلیں سوال چلاتے ہیں۔ میرا نام زمرد خان ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میں فالج کا مریض ہوں، پانی سے وضو نہیں کر سکتا۔ میں نے گھر میں ایک ڈبے میں مٹی رکھی ہوئی ہے، مٹی کے کچھ تیلے، ان سے وضو کرتا ہوں 5 ٹائم۔ کیا اسی مٹی سے بار بار میرا وضو ہو جائے گا یا ہر دفعہ نئی مٹی مجھے لانی پڑے گی؟ رہنمائی فرمائیں، جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔ اللہ کریم آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے رمضان شریف کے برکت سے۔ اللہ کریم آپ کو چلتا پھرتا کر دے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہ ہے کہ مٹی سے وضو نہیں ہوتا، مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے۔ اب یہ خدا بہتر جانے کہ وضو نہ کر سکنے کی وجہ کیا ہے۔ اگر واقعی کوئی ایسا شرعی طور پر کوئی ایسا معذور ہے جو وضو نہیں کر پا رہا، نہ کوئی ایسا ہے جو وضو کروا دے، نہ وضو پر وہ قدرت نہیں رکھتا، تب بھی مٹی سے وضو نہیں ہوتا، مٹی سے تیمم ہوتا ہے۔ مٹی یا مٹی کی جنس، یعنی مٹی کی جو بھی قسم ہو، مثلا دیوار ہے، ہاں دیوار پر آئل پینٹ ہے تو اس آئل پینٹ پر وضو نہیں ہوگا۔ چونا ہے، ڈسٹیمر ہے، ڈسٹیمر بھی مٹی کی قسم ہے، ڈسٹیمر ہے مٹی ہی کی طرح ہے۔ بہرحال چونا لگا ہوا ہے تو اس میں مطلب ہے تیمم ہو سکتا ہے۔ یا آئل پینٹ ہے تو اس میں مٹی چڑھی ہوئی ہے، ایک دم اڑ اڑ کے گرد چڑھتی ہے، سارا اٹا ہوا ہے، تو اب اس مٹی سے تیمم بھی ہو سکتا ہے۔ یا یہ جیسے آپ ماربل کے فرش پر
आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में बैठे हुए हैं, तो ये मार्बल भी मिट्टी है, मिट्टी की किस्म है, तो इस पर मार्बल पर भी तयम्मुम हो सकता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुआ इफ्तार का सिलसिला शुरू।